آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اہم پارٹی اجلاس. ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ قیادت نے مفتاح اسماعیل کو عہدے سے مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی. مفتاح اسماعیل کو بتایا گیا اگلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوں گے. مفتاح اسماعیل پاکستان پہنچنے پر باضابطہ طور پر استعفی دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار پاکستان روانہ ہوں گے. اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کے ساتھ جانے کا مشورہ نواز شریف نے دیا. اسحاق ڈار نے پاکستان آنے کے لیے بدھ کی ٹکٹ بک کرا رکھی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو لندن کا دورہ مہنگا پڑ گیا. اوورسیز پاکستانیوں نے سینٹرل لندن میں مریم اورنگزیب کو گھیر لیا اور چور چور کے نعرے لگائے. مریم اورنگزیب کو دیکھتے ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے احتجاج کیا اور کہا پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ لوگ عوام کے پیسے پر یہاں دورے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. ایک خاتون نے جملہ کسا کہ اس کا پرس تو دیکھیں. شاپنگ کر رہی ہے، مسٹر منڈونا بن کے پھر رہی ہے. ایسے کام کیوں کرتے منہ چھپانے پڑے؟ شرم آتی ہے؟ منہ چھپا کے پھر رہی ہے. یہ دیکھو یہ چوروں کی سینٹرل لندن میں پھر رہی ہے. یہ پاکستانیوں کے پیسہ کھا کے آرگینک شاپ پر یہ آئی ہے پاکستانیوں کے پیسے سے یہاں پر عیش کرنے. یہ شاپنگ کوک ڈائٹ پی رہی ہے. لوگوں کا یہ بے شرمی. یہ دیکھیں جی بیگ برانڈ دیکھو اور ہے چاکلیٹ لے کے نہیں جانی ہے. چورنی شی از اے تھیف، شی از اے تھیف. اور لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کا نواز شریف کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. لیگی قیادت نے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ عوام کے ٹیکسز پر حکمراں یہاں عیاشی کرنے آ جاتے ہیں. عدالت سے مفرور ملزم کو ملک کا وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے. عوام پر بھارت سے تجارت کرنے پر پابندی ہے، لیکن شریف خاندان اپنے مفادات کے لیے مودی سرکار سے پینگے بڑھا رہا ہے. ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یہ اپنی عیاشیوں کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو آن لائن زوم میٹنگ پہ بھی ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ پچھلے ہفتے گئے ہیں، آپ کو ایسی کیا درپیش ضرورت آ گئی ہے کہ آپ نے واپس یہاں پر آنا ہے اور پورا قافلہ لے کے آنا ہے اور ٹیکس پیئر کی منی. جو فائنانس منسٹر ان کو بنانے جا رہے ہیں ان کے خلاف ایک کنوکٹڈ بندے کو جس نے آرٹیفیشلی کرنسی کو کر کے $6 بلین کا لاس کیا، آپ اسی کو دوبارہ بھیجنا چاہ رہے ہیں پاکستان. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر پابندی ہے بھارت کے ساتھ کاروبار کرنے کے اوپر. بھارت کے ساتھ ایک ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے، ایک معاملہ ہے جو آج تک جب تک حل نہیں ہوگا وہ پابندی ہٹے گی نہیں. وہ پابندی پاکستانیوں کے اوپر تو لگاتے ہیں، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے خود پینگے بڑھاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو اتنے سالوں سے نقصان پہنچایا ہے. غداری ہے یہ قوم کے ساتھ، یہ ظلم ہے قوم کے ساتھ. ہمارا پاکستان ڈوبا ہوا آدھے سے زیادہ ہے. ہمارے کروڑوں لوگ وہاں پہ کھانے کے بغیر ہیں، میڈیسن کے بغیر ہیں، اسکول سڑکیں سارا کچھ تباہ ہو گیا. آپ پاکستان بچائیں، یہاں سے پہلی اکٹھی کر کے پاکستان لے کے جائیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کے ملازمین بھی پارٹی رہنماؤں کے نقش قدم پر چل پڑے. لندن میں نواز شریف کی سلیمان شہباز کے گھر آمد کے موقع پر سیکیورٹی اہلکار نے میڈیا نمائندوں کو دیکھ کر نازیبا اشارہ کیا. اس سے پہلے پارٹی کے مرکزی رہنما تارڑ پنجاب اسمبلی میں ایک ہاتھ میں آئین کی مقدس کتاب اٹھا کر بےہودہ اشارہ کر چکے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کی شکلیں کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی شرم کرو. شہباز شریف کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے. تھوڑی دیر صبر کرنا پڑتا ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے. عمران خان کا مبینہ آڈیو پر تبصرہ. کرک میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ آڈیو لیک میں 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. مریم اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری امپورٹ کرا رہی ہے، حالانکہ بھارت کے ساتھ تجارت بند ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کشمیریوں کی قربانیوں کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں. مریم داماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے سرکاری طور پر گرڈ اسٹیشن لگانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس پر عوام کے ٹیکس کے کروڑوں روپے لگیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیپ سنی ہے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے لیکن سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے. مریم کپ کی جو خاص کوالٹی ہے، سچ نہیں بولا جاتا اس سے.
اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی. آدھی آ گئی ہے اور آدھی سفارش کر رہی ہے کہ وہ آدھی مشین بھی میرے دماد کے پاس لے آؤ, کیونکہ اس کے پاس بھی لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی بیچارے کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ناجائز کام کر رہی ہے, اس کو کرپشن کہتے ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے وہ تجارت کھولنے کی اور ابھی کھلی نہیں ہے, لیکن مریم کا دماد غیر قانونی طور پہ مشین ہندوستان سے لے رہا ہے. ان کے لیے ان کا خدا صرف کہاں چلے ایک آدمی کرپشن کر لے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا اتنا بڑا ٹبر ہے وہ سارے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ ابھی دماد صاحب نے بھی پیسے بنانے ہیں. مریم کو بہت تکلیف ہے کہ میرے دماد کو پیسے بنانے دو, اس کو مشکلوں میں نہ ڈالو. اب یہ بھی رشتہ دار ہے مریم کا دماد جس کے لیے یہ ہندوستان سے مشینری بنائی جا رہی ہے. اور مریم کیا کہتی ہے کہ گریڈ اسٹیشن بنا دو میرے وہ دماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں, سرکاری طور پہ بنا دو. سرکاری طور کا مطلب کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بنا دو. 70-80 کروڑ کا فائدہ کروا دو میرے دماد کو آپ کے پیسے سے. آڈیو لیکس کو آئے 24 گھنٹے ہو گئے. ایک دن میں 6 پریس کانفرنسز کرنے والی نون لیگ کو سانپ سونگھ گیا. لیگی قیادت اور وزراء اور رہنماؤں پر سختہ طاری, میڈیا کے سوالات کے جواب دینے سے گریز. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے محض بیان جاری کر کے جان چھڑا لی. کہتی ہیں آڈیو ثبوت ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا, کسی کو کوئی ناجائز فائدہ نہیں پہنچایا گیا. بھارت سے بجلی کا پلانٹ عمران حکومت کی پالیسی اور قانون کے مطابق آیا. گرڈ اسٹیشن کی تنصیب سے متعلق 18 جولائی 2020 کا ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں. رانا ثنا کی بھی نرالی منطق, کہتے ہیں آڈیو ہماری گڈ گورننس کا ثبوت ہے. اور مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس کے افسروں کو براہ راست ہدایات دینے لگی. ثبوت سامنے آ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف اور پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کی مبینہ آڈیو لیک میں انکشاف. آڈیو لیک میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اپنے داماد کے کام کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے افسروں کو ہدایات دیتی ہیں. آڈیو کے مطابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ مریم صاحبہ نے ایک کام کہا تھا جس کے لیے چیٹ بھی ہوئی تھی. مریم کے داماد راہیل کے لیے کام تھا, وہ نہ کریں, اس سے نقصان ہوگا. 3-4 مہینے بعد ڈالنے فلیک آئے گا سر. چلیے اس کو ذرا ان کو آن بورڈ لے کے, اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آئے گا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے رات بات کی تھی. ہی از ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میرے خیال سے 2 کام ہونے بتایا سر. ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں, تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں, پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا, جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگار خان میں, وہ ہم کرا رہے ہیں. 2 کام بتائے تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی بہت ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر, تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس, وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی, ECC میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, چلو اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر بات کریں سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید.
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक होने पर बड़ी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की 115 घंटे की गुफ्तगू लीक हुई, इस पर बहुत तशवीश है। डार्क वेब पर मौजूद ऑडियो लीक की $3.5 लाख बोली लग रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पता चलता है कि फैसले लंदन में हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज है? आ रहा है कि 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, डार्क वेब के ऊपर इसको होस्ट किया गया है, जहाँ पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है इस वक्त कि वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, यानी दुनिया की 7 एटमी ताकतों में जो मुल्क शामिल है, उसके वज़ीर आज़म के दफ्तर की जो कन्वर्सेशन है, उसके दफ्तर की जो गुफ्तगू है, वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। मरियम नवाज़ बाहर कहती हैं कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो में कह रही हैं कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है जी, फ़ौरन आप तेल की कीमत बढ़ाएं। वज़ीर आज़म की इस तरह का दफ्तर महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज होगी? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि भारत से तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादी काविशें हैं। कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ और अपने सारे केसेस खत्म कराओ। मुल्क में कोई अच्छी खबर नहीं आती और इंडिया के साथ तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इनका बुनियादी पॉलिसी है। और ये अफसोसनाक बात है, एक तरफ हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने कारोबारी इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। और ये कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ, हुकूमत में आओ और अपने सारे केस खत्म कराओ। इसमें बड़े लोगों ने पहले खजाना लूटते हैं और अब जेब की, गरीब की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हमारी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मसले में। अंदर से सब एक है, नून और शीन बनी जरूर है, लेकिन इन दी एंड जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और अपने मफादात पे ये बात नहीं आने देते। इक़्तिदार इनकी मजबूरी है, कमजोरी है और इनका कारोबार है। अवाम को तकलीफ देना इनका मकसद है, कोई इनको फिक्र नहीं पड़ती, क्योंकि ये आते चोर दरवाजे से हैं और कभी भी इनकी सोच अवाम के लिए नहीं हुई, बल्कि इनकी सोच ख्वास के लिए है। ये ख्वास के नुमाइंदे हैं। अवाम तो जी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका कोई मसला ही नहीं है। अवाम इज्जत वो होती है जो लोगों के दिलों में हो, और लीडर वो होता है जो अवाम को की तकलीफों को अजाला करे, ना कि अवाम को और तकलीफों में डबो दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा कहते हैं, हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास पाकिस्तान दुश्मनी के लिए मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान मौजूद है। वज़ीर आज़म हाउस से लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले, भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दाव पर लगा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। मुबैना ऑडियो लीक में चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात पर भी गुफ्तगू सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है। मरियम नवाज बोली बहुत बदमाशी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि घर को तकसीम कर दिया। बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज फिर बोली, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता। अदा वगैरह के साथ बैठ के करना था, तो ये आज बजट हो जाए उसके बाद तो इसमें मुझे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए जिंदगी भर वो छोटे भाई को आगे जाता, जिंदगी भर हर मौके पर उसको प्रवेश नहीं हुआ जाता। उसको बच्चे को जान किया जो अपने भाई का नहीं, किसी का नहीं, वो बड़ा भाई जो उसने प्रवेश आप जैसा भाई हमेशा उसको आगे किया, हमेशा उसको आगे किया। अभी भी अंकल वो इसके जोन पे बोलता नहीं, और वो अपने बच्चों को इस तरह करवाया, बच्चों को पीछे अब उनको कामना ये होता है जब गरीब आ जाए और बड़ों का पास नहीं मुझे लगता है कल मुनस में उसको बहुत खराब करने वाला है, कोई बेटा कोई खराब करने वाला, पर अंकल इसको तो अकल करनी चाहिए।
कि बेटे की बातों में आपके साथ बिल्कुल बात कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई उनकी असलियत का तो मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़बान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि इनकी असलियत का हमें तो पता था, अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं, ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है। ये मुगलिया खानदान की सोच ही इस तरह की है। और मोनिस इलाही का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ की बात सुनकर हैरत हुई, सारा शरीफ खानदान ही फ्रॉड है। चौधरी परवेज इलाही ने खराब तो उनका वजीर आला बनकर होना था, अल्लाह ने हम सबको बचा लिया। नून लीग की क़यादत की पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक ने भी हलचल मचा दी। मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा किसे रखना है और किसे नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने 7 को नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि जी आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है, मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में होगा सत्ता ने करना होगा टीम मुझे समझ में आएगा, उसके बाद क्या होगा सर वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं आते तो वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसका हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आइएगा, रखना किसको अपने पास रखिए, बुनियादी बात है। जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा, वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। मेरा नाम अगर एक बंदे को आपने फायर करना है जी, ही डजंट शो अप जी, तो व्हाट विल यू से, नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया हमने बजट की मीटिंग तैयार है, पहले 11 को है हमारी कैबिनेट। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सैनिटाइज कर दिया जी, इसमें देर न करें बस। ये अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से अप्रूवल नहीं देंगे, उनके लेनी है जो शाम 4-5 निकल के इनमें घर में ही मत लेंगे। कोई राणा साहब को अथॉरिटी भेजना डिसाइड कर देगा, बस डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी। किसी भी रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसी को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं। किन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं ये फैसला स्पीकर के बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई कि जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सनाउल्लाह को दिया जाए। सवालात उठने लगे। कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर कठपुतली और रबड़ स्टैंप हैं, इनके इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं ऑडियो लीक से वाज़े हो गया पीटीआई के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर नहीं किए।
मौजूदा असम्बली रबर स्टैम्प कठपुतली स्पीकर हैं, उनके इख्तियारात पुराना सुना इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी एतराज की बात है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, उनसे इस्तीफों की मंजूरी का फैसला किस कानून के तहत और किस हैसियत से करवाया जा रहा है। ऑडियो लीक से तो ये बात अय्यान हो गई, ये इस्तीफे स्पीकर ने जो है वो मंजूर नहीं किए। बाकायदा तौर के ऊपर एक साजिश तैयार की गई। ये मामला इस्तीफों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है। हमारे वकला के पास अब ये एक मटीरियल है, इसका वो कानूनी तौर के ऊपर जायजा लेंगे कि इसको किस तरीके से अदालत के सामने जो है वो पेश किया जा सकता है। और ऑडियो लीक्स के बाद किसका क्या गठजोड़ है सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट लिखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इम्पोर्टेड हुकूमत में गठजोड़ पर अब कोई शक नहीं रहा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि मुबैना ऑडियो से वाज़ेह है कि साजबाज करके 9 हल्कों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुबैना ऑडियो से वाज़ेह है कि कैसे शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह से साजबाज की गई। गैर जानिबदारी के हलफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं। अदालत ने नोटिस लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। अब ये साबित हो चुका कि ये इमरान खान के खिलाफ एक साजिश है। वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत करते हैं, दर हकीकत अंदरून खाना न सिर्फ इसकी हिमायत बल्कि इसरार करते हैं। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक में कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। वज़ीर आज़म को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा देते हुए कहा, ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। अंकल, आपका इमेज किसी और तरीके से बनाना होगा। मैं ये कह रही थी, आज अगर वो कह रही थी कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं, पैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेरी नाराज का मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल, हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिसे पाकिस्तान की कुंजी सौंपी, मरियम नवाज ने उसी के खिलाफ महाज खोल दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक खूब गिले शिकवे, इसहाक डार की तारीफों के बुल बांध दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान बिन सलीम की मुलाकात। ISPR ने बताया कि सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। शेख सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया दिया और मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरवक्त ताउन पर शेख सुल्तान से तशक्कुर का इजहार किया। शेख सुल्तान ने कहा, UAE की क़यादत मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। शेख सुल्तान ने मुस्तकबिल में अपने इदारे की सरमाकारी का भी इंदिया दिया। फ्लड रिलीफ कोशिशों के लिए मजीद अतिया करंदगान को लाने की भी पेशकश की। शेख सुल्तान ने सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। शेख सुल्तान ने दौरे के इंतजामात करने पर फख्र आलम का भी शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुल्क के सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश दूसरा कार्गो जहाज इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। UAE कौंसल जनरल का कहना है कि 3 लाख से ज्यादा मुतासरीन के लिए खाने का सामान मकामी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। 30 कंटेनर जो अभी आपके सामने आज जो हम लोग आए हुए इधर इनके हैंड ओवर करने के लिए, और ये 30 कंटेनर तकरीबन 3 लाख पैकेज फूड स्टफ इसमें शामिल है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा कत्ल केस में गिरफ्तार सहाफ़ी अयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी अहलिया सारा को जुमे के रोज़ कत्ल कर दिया था। पुलिस ने सारा कत्ल केस में गिरफ्तार सहाफ़ी अयाज अमीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिविल जज साहिद तिरमिजी की अदालत में पेश किया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया। अयाज अमीर का नाम FIR में शामिल नहीं, न उनके खिलाफ कोई सबूत है। पुलिस ने कहा, मरकजी मुलजिम के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है। हाई प्रोफाइल केस है, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए। अयाज अमीर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। पुलिस को खुद फ़ोन करके कत्ल की इत्तला दी। कत्ल के वक्त वो इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर थे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मरकजी मुलजिम शाहनवाज पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। और महंगाई का तूफान, हर शख्स परेशान। आटा, दाल, घी, चीनी सब महंगा। सब्जी, फल और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। बदतरीन महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है।
हुकूमत अपने मजे कर रही है, आवाम जो है पिस रही है। सब्जियाँ इतनी महंगी है, गोश्त इतना महंगा, क्या आदमी क्या खाएगा। बड़ी परेशान हूँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, ना नौकरी ना धंधे ना कुछ, और महंगाई ने बहुत मारा हुआ है। ये आटा आप लोगों ने 60 रुपए किलो बोल रहे हो बेचने का, ये बिक रहा है 110 रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई तो इतनी ज्यादा है कोयटा के शहर में, गरीब की बस की बात नहीं है जो गोश्त का है। हुकूमत को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। फ्रूट सब्जी ये तो अभी गरीबों की रेंज से बाहर हो गए। घर के अखराजात काफी ज्यादा है, बच्चों का खर्चा, डॉक्टरों का फीस, कुछ पूरा नहीं कर सकते। कुछ समझ नहीं आ रही कि कभी आटे की शॉर्टेज है, रोटी भी मज़ीद 40 रुपए तक जा रही है। बड़ी मुश्किल है कि गरीब जिंदा रह सके इस पाकिस्तान में। अशियाई खुर्दनोश तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, दाल चावल सब्जियाँ, गरीब के तो समझ से बिल्कुल बालातर है। सरासर नाइंसाफी है इस हुकूमत की कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिए महंगाई को कि इंसान जो है तो वो डिप्रेशन का मरीज हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।